Hello, everybody. Welcome or welcome back. I've planned to launch a new series for all of you by the name of Fast Track Revision Series. Now, these are not single shot videos as the thumbnail says, but these are fast track revision courses where we might have to deal with certain lengthy chapters, even in 2 or 3 shots. And aldehydes, ketones, and carboxylic acids is one such chapter, is one of the hugest chapters that we have in the entire class 12th chemistry curriculum. It's one of the lengthiest chapters, and I don't think definitely nothing's impossible, but I don't think it would make practical sense to complete the entire video in one go, because I might do that, but if you want the in-depth explanation of each concept and if you want to thoroughly revise the chapter, it does not make sense to complete the entire chapter in one single go. So what I'll do it, in this fast track revision series, I will complete this chapter in 2 or 3 shots, right, and not a single shot. So without any further ado, let's dive right into it and let's get started. Okay, so I've already made the notes, so we'll quickly go through the notes, because just in case you're looking for detailed videos, we already have a separate playlist created for that, and you can check them out. Alright, okay, starting off with aldehydes, ketones, and carboxylic acids. Now, what are aldehydes, ketones, and carboxylic acids, and why do we study these compounds together? Now, this chapter basically involves the study of carbonyl compounds. Carbonyl compounds क्या होते हैं? Those compounds which contain the C double bond O group. तो जो C double bond O group होता है, right? जिन compounds में ये C double bond O group है, they are referred to as carbonyl compounds. And aldehydes, ketones, and carboxylic acids, all three of them, they contain the carbonyl group, which is why we study them together. Alright, starting off with aldehydes. Aldehydes, as you can clearly see it for yourself, let me zoom it. You can see that C double bond O, you can clearly see the carbonyl group here, the presence of carbonyl group. अब aldehydes के केस में carbonyl group के एक साइड हाइड्रोजन फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक साइड हाइड्रोजन फिक्स्ड होता है, and on the other side it could be any R represents, it could be any alkyl group, aryl group, or it could also be hydrogen, ठीक है. तो CHO हम जैसे बोलते हैं, CHO is the functional group referred to as aldehydes, right? तो C double bond O के एक aldehydes के केस में C double bond O के एक साइड हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रहता है, and on the other side we have the R group. Now this R could be hydrogen, could be any alkyl group, or could be any aryl group, ठीक है. Now when we talk about ketones, if we talk about ketones, ketones में जो C double bond O group है, ketones में the C double bond O group, इसके एक साइड we have R, इसके एक साइड we have R dash, right? इसके एक साइड we have the R group, एक साइड we have the R dash. Now this R and R dash can be any alkyl group, can be any aryl group, but both R and R dash cannot be equal to hydrogen, ठीक है. दोनों R या R dash हाइड्रोजन नहीं हो सकते. I'll tell you why. Because अगर मान लो let's say मैंने R dash की जगह हाइड्रोजन लिख दिया, right, again this will become CHO, this will resemble aldehyde, ये aldehyde बन जाएगा, keto नहीं रहेगा, right, which is why both R and R dash groups can be any alkyl aryl groups, ठीक है, but they cannot be hydrogen. Okay, then we talk about carboxylic acids. Carboxylic acids में अगर हम बात करें, again you can see the presence of C double bond O, this carbonyl group here, ठीक है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड तो OH ग्रुप हमेशा होता है, दी हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव द R ग्रुप. नाउ हियर द R कैन बी हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, एनीथिंग, ठीक है. इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स द R ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, ऑल थ्री, बिकॉज हमने देखा है ना, H C double bond OH, right, methanoic acid, right? So the R group can be hydrogen as well, but that's not the case in ketones, right? Okay, now let's discuss about some of the aldehydes and ketones that we use in our daily life, okay, but I'm unaware. Okay, so the first one is salicyl aldehyde, ठीक है. अब salicyl aldehyde में हम क्लियरली देख सकते हैं, बेंजीन पे एक CHO ग्रुप है एंड वी हैव दी OH ग्रुप, ठीक है. एक CHO एक aldehyde ग्रुप है, एक alcohol functional group है, right? Now this compound benzene, ठीक है, with one CHO group and one OH group is referred to as salicyl aldehyde, and salicyl aldehyde is actually obtained from a plant by the name meadowsweet, ठीक है. अब मैं अगर क्विकली आपसे पूछूँ, कैन यू क्विकली टेल मी द नेम, द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, देन हम सबको पता है, अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में चले, देन आई गेस एल्डिहाइड की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है इफ़ यू कंपेयर टू अल्कोहल्स, राइट. सो ऑफकोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी एल्डिहाइड एंड देन कम्स अल्कोहल. नाउ इफ़ alcohols are used as secondary prefix, we use the word
hydroxy and not ol. So this would become 2-hydroxy. The IUPAC name would be 2-hydroxy. फिर बेंजीन पे हम क्लियरली देख सकते हैं, बेंजीन पे वी हैव द एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस बिकम्स 2-hydroxy benzaldehyde. I hope that is clear. Okay, moving on to the next compound which is vanillin. Now vanillin क्या होता है, बेंजीन रिंग पे एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप और एक alcohol functional group. So you have an aldehyde functional group, you have a methoxy functional group, and you have an alcohol group, like the hydroxy group, right? Now this is vanillin, and this vanillin is actually obtained from vanilla beans. So जो भी हम cakes में the vanilla essence and all that we add, that's actually the flavor of vanilla is actually due to the presence of this chemical called vanillin. ठीक है? Okay, now moving on to another compound. As you can clearly see, we have the benzene ring. Benzene ring से attached is CH double bond CH CHO. Right now, this compound is actually referred to as cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde is actually not the cinema that you are thinking of, but cinnamaldehyde is actually a compound which is obtained from cinnamon. Cinnamon, I'm sure all of you must have heard. It's a very common household ingredient. In Hindi, we refer to it as the dalchini, right? So this is the structure of cinnamaldehyde. Of course, we'll be dealing with such structures in depth as we go ahead. Okay, now this is the table that is categorically given in NCERT, and I've created that table out for you, and all the common names are extremely important. They've been asked multiple times as previous year question papers, so make sure you give it a thorough reading. Okay, now the first compound that we'll be dealing with is CH3 CH2 CH2 CHO. Now can you please tell me the IUPAC name, if not the common name? How do you say the IUPAC? How do you write the IUPAC name here? Okay, so aldehyde को first priority. Okay, 1, 2, 3, 4. So there are a total of 4 compounds, 4 carbons. So but, single bond ane, and then we have the aldehyde functional group on the first carbon. So this becomes butanol. Now butanol का common name क्या हो जाता है? The common name is butyraldehyde, right? Moving on to the next compound. Next compound is CH3 CH2 whole thrice CHO. Now make sure that you give the most preference to the aldehyde functional group, and you give it the least possible number. So you start off with the aldehyde functional group 1, then we have 3 carbons here, and then the 4th one. So 1, 2, 3, 4, and this is the 5th carbon over here. Okay, so there are a total of 5 carbons that makes it pent. Okay, and the primary suffix would be ane because they're all attached by a single bond. A first carbon per aldehyde functional group, so this becomes pentanol, right? And what is the common name of pentanol? It is valoraldehyde. What is it? It's valoraldehyde. Okay, moving on to the next one. CH3CH CH3CHO. Now how do you name it? Now this becomes the longest carbon chain, right? And 1, 2, 3. So now at the second carbon you can clearly see the methyl group as the substituent, right? So how do you write the IUPAC name? This becomes 2-methyl. At the second carbon you have 2-methyl. Then for 3 carbons we use the word prop, then single bond ane, and first carbon pe we have the aldehyde functional group, so this becomes 2-methyl propanol. Now what is the common name of 2-methyl propanol? It is known by the name isobutyraldehyde. What is the common name? It's isobutyraldehyde. Okay, moving on to the next compound, CH3CH CHNO2CHO. Okay, now as you can clearly see for yourself, like this is the longest carbon chain. Okay, aldehyde will be given the first number, right? It will be given the most preference, least possible number हम aldehyde को देते हैं. In fact, aldehyde के केस में, since aldehyde is a terminal functional group, terminal मतलब chain के end में आता है, unlike ketones जो chain के बीच में आते हैं, right? Aldehydes are a terminal functional group. तो हम भी make sure कि जब हम compound का IUPAC name लिख रहे होते हैं, we start off with aldehyde, right? Okay, so this becomes 1, 2, 3, 4. Second carbon पे हम clearly देख सकते हैं we have NO2 nitro group as the substituent, so this becomes 2-nitro. 4 carbon के लिए we use the word root but, then we use ane, and then it becomes al. So this becomes 2-nitrobutanol. Now what do you think is the common name? हमें सबको पता है functional group के बगल वाली जो carbon होती है we refer to it as the alpha carbon. Now alpha carbon contains a nitro group, so this becomes alpha nitrobutyraldehyde. ठीक है, अल्फा पोजीशन पे भी आप नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए विद द इंक्लूडिंग द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वी यूज ब्यूटाइरएल्डिहाइड. ठीक है, another one is CH2 double bond CH CHO, as you can see it for yourself, right? Now where do you start the numbering from? Of course from the aldehyde functional group. So 1, 2, 3. So for 3 carbons we use the word root prop. Since we have the presence of a double bond at the second carbon, so it becomes prop 2 ene. First carbon pe we have the aldehyde functional group, so we can write it as prop 2 ene 1-al, or you do not need to mention the number when it comes to aldehyde because it's understood that it will be at the first carbon, right?
एल्डिहाइड की कार्बन को ही हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. सो prop 2 enal becomes the correct IUPAC name of the compound. Now please remember, this is one of the most frequently asked questions. A lot of students are unaware of the common name. Prop 2 enal is commonly known as acrolein. Okay, please pay attention once again. Prop 2 enal, as you can clearly see, 1 2 3 there are 3 carbon atoms. Second carbon pe you have a double bond, so 2 ene, and then first carbon pe, since there's an aldehyde functional group, so it becomes prop 2 enal, and the common name is referred to as acrolein. Okay, moving on to question number 7. Question number 7 is CH3CH double bond CH Now how do you write the IUPAC name? It's 1 2 3 4. For 4 carbon atoms we use the word but, and then second carbon atom पे हमारे पास double bond है, it's ene. Also this becomes but2enal. Now but2enal, again very important, the common name is very important. But2enal is commonly known as croton aldehyde. Okay, prop 2 enal is known as acrolein, and but2enal is known as croton aldehyde. Okay, moving on to the next one, the 8th question, question number 8. Question number 8 says there's a benzene ring, as you can clearly see. Benzene पे we have CH double bond CH CHO. Now what do you think is the compound? Now how do you number it? देखो, either you number the ring or you number the open chain. ठीक है, दोनों को एक साथ नंबर नहीं कर सकते, तो either you number. Now what do you number? जब आप ऐसे एक ट्रांस में फंसे हो, what do? You look for the functional group. Functional group अगर रिंग में इंक्लूडेड है, देन यू नेम द रिंग. फंक्शनल ग्रुप अगर एलिफैटिक या ओपन चेन में प्रेजेंट है, यू नेम द ओपन चेन, राइट. दिस वी कैन क्लियरली सी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन में प्रेजेंट है, वी नंबर द रिंग, द नंबर द चेन, राइट. सो 1 2 3 3 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास प्रॉप है, बट हम क्लियरली देख सकते हैं थर्ड कार्बन एटम पे जो बेंजीन है, इट्स यूज एज अ सब्सटीट्यूएंट. तो जब बेंजीन सब्सटीट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होता है, वी रेफर टू इट एज फिनाइल. सो दिस बिकम्स 3 थर्ड कार्बन पे वी हैव फिनाइल, 3 फिनाइल. 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप. सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप 2 enal. This becomes 3 phenyl prop 2 enal. Okay, now 3 phenyl prop 2 enal is commonly known as cinnamaldehyde. I hope that makes perfect sense. Moving on to question number 9. Question number 9 is, there's a benzene ring with a CHO group and another CHO group. ठीक है, so adjacent positions पे CHO groups present है. Now how do you number it? इसको first position, इसको second position. Now see, what you cannot do is, a lot of us tend to make a lot of mistakes here. What we do is, हम एक CHO को as a substituent यूज़ कर रहे होते हैं, and we consider this as benzaldehyde. No, दोनों CHO बराबर हैं, right? They're the same functional group, right? You cannot, that's not how you eliminate, right? दोनों की equal priority. Either you include both in the main chain or you do not include either of them. So since it's not practically possible to include both in the main chain, right? So we exclude the two of them. So and instead what we do is we number the benzene ring 1 2. ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन पे वी हैव द CHO फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पे हम अल नहीं लगाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड की कार्बन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन चेन, एंड वी यूज द सुपर सफिक्स हियर, एंड दैट बिकम्स बेंजीन 1,2 dicarbaldehyde. So when the carbon of the aldehyde functional group is not a part of the main chain, the suffix that we use is carbaldehyde and not al. Okay, moving on to the next question. Question number 10 says CH3CH2CO CH2 CH3. I hope. Okay, now how do you number it? You can number it from either left to right, but you have to ensure that ketone gets the least possible number. Okay, so you name it from either left or right, ketone still gets the third position. So now there are total of 5 carbon atoms, so this becomes pent. All are bonded with each other by a single bond, so pentane. Third carbon pe we have ketone, so pentane 3-one. Now pentane 3-one is the correct IUPAC name. Now what do you think is the कॉमन नेम? नाउ C डबल बॉन्ड होके हम देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड होके इस साइड भी एक इथाइल ग्रुप है CH3 CH2, एंड इस साइड भी एक इथाइल ग्रुप है CH3 CH2. सो दिस बिकम्स डाईइथाइल कीटोन. दिस कॉमनली रेफर टू एज डाईइथाइल कीटोन. ठीक है, कॉमन नेम हो जाएगा डाईइथाइल कीटोन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 is CH3CH CH3CO CH3 CH3. Now as you can clearly see, the first let's get over with the IUPAC name. Now this is the longest carbon chain. ठीक है, even you can take this as the longest carbon chain, but since वो straight है, either way you'll still end up arriving at the same answer. Okay, now if you take this as your main chain, right, so what do you think would be the correct answer here? अब देखो यहाँ पे हम अगर इसे नंबर करेंगे 1 2 3 4 5, कीटोन जो C डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड कार्बन एटम पे आता है. ठीक है, थर्ड कार्बन पे आ रहा है, और हम क्लियरली देख सकते हैं सेकंड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स. तो द IUPAC नेम वुड बी
2,4 dimethyl, 2,4 dimethyl, 5 कार्बन के लिए we use the word root pent, single bond in third carbon पे ketone, so it becomes pentane 3-on. So this becomes 2,4 dimethyl pentane 3-on, right? Now what do you think is the common name? हम सबको पता है, right? I mean, whenever you must have done nomenclature at some point in your life, right? So हम सबको पता है the CH3, CH3, this group, this is nothing but the isopropyl functional group. ठीक है, इसको हम isopropyl बोलते हैं, राइट? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से, if you pay a little bit close attention, C डबल बॉन्ड हो कि आप देख सकते हैं इधर भी CH3 फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी CH3 CH3 फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी CH3 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं C डबल बॉन्ड हो कि दोनों साइड वी हैव द आइसोप्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, या तो वी राइट इट एज द commonly we write it as diisopropyl ketone. Now moving on to the last one, the last compound for today, and the structure looks somewhat like this. Now this is not a benzene ring, mind you, this is not a benzene ring, this is a cyclohexane, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास है एक कीटोन and here we have the CH3 functional group. Of course ketone की priority is much higher if you compare it with methyl group. So we give it the least possible number, which is number 1, ठीक है? Then this becomes number 2, this becomes number 3, this becomes number 4. तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, so we write it as 4-methyl, ठीक है? Now close chain के लिए we use the word cyclo. Primary prefix that we use here is cyclo. There are total of 6 carbon atoms, as you can see. We use the word hex, word root hex, single bond in, first carbon पे ketone, तो hexanone. So this becomes 4-methyl cyclohexanone. 4-methyl cyclohexanone. अब how do you write the common name? अब जैसे कि we are all aware कि जो functional group है, which is the C double bond O, as you can clearly see here, functional group की जो बगल वाली कार्बन होती है, that is referred to as the alpha carbon. उसके बगल वाली becomes the beta carbon, उसकी बगल वाली becomes the gamma carbon. अब हम सबको दिख रहा है gamma carbon पे एक substituent which is methyl branched है, तो इसका common name हो जाता है gamma. This becomes gamma methyl cyclohexanone. What is the common name? The common name is gamma methyl cyclohexane. I'm sorry. This becomes gamma methyl cyclohexane and not hexanone. Why? Because when we mention gamma, हम already एक reference point लेके चल रहे हैं कि gamma मतलब it's at, you know, it's exact opposite to the functional group that we are referring to. So we write it as gamma methyl cyclohexane. Okay. Now talking about the structure of the carbonyl group. Carbonyl group में we have C double bond O and then there are 2 single bonds here. तो अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूँ कार्बन की इस केस में, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन? हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, सी. सो 3 सिग्मा 1 पाई which makes this carbon sp2 hybridized, right? So what is the hybridization of carbon here? The carbon is sp2 hybridized, ठीक है? अब sp2 hybridized carbon की ज्योमेट्री क्या होगी? It's trigonal planar. That's the geometry, as you can see it for yourself. The geometry is trigonal planar and the bond angle between each is 120 degrees. So there's a bond angle of 120 degree each. I hope that's crystal clear to all of you. ठीक है, अब देखिए, अब clearly one thing that we must pay attention to is, देखो सी कार्बन के साथ ये एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होता है और सिग्मा बनता है विद द हेल्प ऑफ हेड ऑन कोलिजन, ठीक है? तो ये हेड ऑन कोलिजन से बनेगा. नाउ व्हेन वी रेफर टू द सेकंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे, राइट? देयर इज गोना बी अ साइडवेज ओवरलैप, ठीक है, एंड देयरबाय फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड दैट्स फॉर्म्ड हियर. तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ये देखो ये 3 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जब ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. ना दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट? अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो या तो अबव जो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो या तो अबव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी, राइट? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू शो एंड डिपिक्ट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो इट्स गोना बी आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म ऑफ कोर्स एक सेपरेटली मेंशन नहीं है इफ़ यू ओपन अप योर टेक्स्ट बुक्स, but isomerism is one concept which we study in depth in class 11th itself. So a lot of teachers tend to skip this, but you know, let's do it because I would not follow the NCERT sequence when it comes to isomerism, because isomerism is an equally important topic and questions have been asked
in previous years from this particular topic. Okay, so chain isomerism की अगर बात करूँ, देखो ketones में, aldehydes and ketones में we get to see chain isomerism, we get to see mostly all kinds of isomerism. हमें chain isomerism दिखता है, we can see position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism, ठीक है. most types of isomerism जो हम पढ़ते हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है, in the aldehydes and ketones, ठीक है. अब chain isomerism की बात करूँ तो पहली चीज़ that I'd like to highlight here is aldehydes and ketones both follow a general formula which is CnH2nO. CnH2nO, ठीक है. अब लेट्स से जैसे मैंने इसमें n की वैल्यू अगर 4 रखी तो आई गेट ओके इट्स CnH2nO. CnH2nO अगर n की वैल्यू मैं 4 रखती हूँ, दिस बिकम C4H2 4 is 8O, so this becomes C4H8O, ठीक है. अब 4 कार्बन एटम्स के लिए 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें एक एल्डिहाइड की कार्बन होगी, राइट. अब 4 कार्बन एटम्स, ठीक है. अब हम चेन आइसोमेरिज्म शो करें. चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 or more compounds which have the same molecular formula but they differ in the carbon chain length, ठीक है. अब या तो देखो पहले वाले में हमने क्या किया, चारों कार्बन को हमने स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया, राइट, इन अ स्ट्रेट चेन. बट हम अब क्या कर सकते हैं, हम चारों कार्बन में से 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में और 1 कार्बन को ब्रांच कर सकते हैं. अब नाउ व्हाट मिस्टेक दैट आई कॉमनली सी स्टूडेंट्स मेक इज़, they do it like this, they branch off the substituent from the first carbon. Now if you see, यहाँ से चेन कंटिन्यू नहीं हो जाएगी ऐसे, so you cannot do that, that's wrong, right, which is why you hang the substituent from the second carbon and not the first carbon, ठीक है. तो यहाँ पे मेन चेन देखो 3 कार्बन की ले लो और 1 कार्बन को ब्रांच कर दो, ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली सी इट फॉर योरसेल्फ. यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन की है, सो यहाँ पे IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट. 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, ब्यूटेनल. अब हम इस वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम्स की है, राइट. सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच है, तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल. 3 कार्बन के लिए बिकम्स प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन एंड देन बिकम्स अल्प, सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेनॉल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ. यहाँ पे 4 कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की मेन चेन है, सो चेन लेंथ में फ़र्क आ गया, विच इज़ वाई दे फॉलो इनटू द कैटेगरी ऑफ चेन आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब मैं अगर CnH2n जो जनरल फार्मूला है, तो CnH2NO ये जो जनरल फार्मूला है, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 5 पुट करूँ, दिस बिकम C5H2 5 10O, सो दिस बिकम C5H10O. अब मैंने एक कीटोन का एग्जाम्पल, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया. नाउ लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कीटोन. कीटोन में भी चेन आइसोमेरिज्म देखा जाता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स. अब हम सबको बताया कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इट्स नॉट ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, वो चेन के बीच में आता है. तो एक बार हम क्या करते हैं, लेट्स प्लेस इट ऑन द सेकंड कार्बन. एक बार सेकंड कार्बन पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा दो, एक बार सेकंड कार्बन पे लगा दिया. एक बार व्हाट यू डू इज़, नो एक्चुअली यहाँ पे वो जो एग्जैक्टली मैं बोलती हूँ, यहाँ पे हमने सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है. अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कार्बन को ब्रांच कर देंगे, बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे अभी हम पोजीशन में फ़र्क नहीं दिखा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहे हैं, पे चेन आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं. चेन आइसोमेरिज्म में चेन लेंथ में फ़र्क आएगा, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में नहीं. तो यहाँ इस वाले केस में भी जो हमारा कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड वो सेकंड कार्बन पे ही होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक कार्बन को ब्रांच कर दे रहे हैं. एज आई सेड, लास्ट कार्बन से ब्रांच मत कीजिएगा, बिकॉज चेन कंटिन्यू हो जाएगी, सो मेक श्योर आप सेकंड लास्ट कार्बन से ब्रांच कर रहे हो. Okay, so now, okay, what do you refer to this compound? How do you write the IUPAC name of this particular compound? This becomes 1 2 3 4 5. For 5 carbon atoms, you write pent, single bond ane, second carbon पे ketone, so this becomes pent-ane-2-one. Okay, now when you refer to its isomer, इसका IUPAC name क्या हो जाएगा? This becomes 1 2 3 4. Make sure that you try and give ketone the least possible number. वो rule हमेशा लगेगा. That's like universal IUPAC के टाइम में, ठीक है. तो 1 2 3 4 अब हम क्लियरली देख सकते हैं. थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच है, दिस बिकम्स 3 मिथाइल. 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड कार्बन पे कीटोन, सो दिस बिकम्स 3 मिथाइल ब्यूट एन 2 ओन. ओके, सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो 5 कार्बन एटम्स की है, यहाँ पे कार्बन चेन 4 कार्बन एटम्स की है, सो यू कैन सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ, राइट. ओके, अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की. पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देखा जाता है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के केस में. ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड्स के केस में नहीं देखा जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, राइट, इट मेक्स कंप्लीट टोटल सेंस, राइट, बिकॉज एल्डिहाइड्स जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, सो इट्स बाउंड टू कम एट द फर्स्ट पोजीशन. वो फर्स्ट एंड में ही आएगा चेन के, और जहाँ पे वो आएगा वहीं से हम चेन की स्टार्टिंग करेंगे. सो एल्डिहाइड इज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, विच इज़ वाई इट डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, बट कीटोन्स दे कम इन द मिडल ऑफ द चेन, सो दे कैन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म. अगेन हम सेम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो, अभी तक मैंने क्या किया था, आई
यू नो आई मेड अ डिफरेंस इन द चेन लेंथ. अब मैं पोजिशन आइसोमेरिज्म के केस में क्या होगा, पोजिशन आइसोमेरिज्म के केस में बोथ द कंपाउंड्स विच आर रेफर्ड टू एज आइसोमर्स दे शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला. Okay, so the very first condition that you have to satisfy in order to be referred to as an isomer is the fact that, you know, both the compounds or all the compounds which are being referred to as isomers, they should share the same structural form. They should share the same molecular formula. Now the difference comes in position isomerism in the case of the position of the functional group, position of the multiple bonds, position of the substituent, position of the functional group. Position में फ़र्क आ जाता है. That's when we refer to it as position isomerism. Position isomerism के केस में chain length same रहेगी. So same molecular formula, same chain length. The difference comes at the level of the position of the functional group. तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम्स की चेन है. यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड हो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे है. यहाँ पे द कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज ऑफ द थर्ड कार्बन एटम. सो दिस इज पेंटेन 2 on, दिस इज पेंटेन 3 on, राइट. दे बिकम पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनल आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड जो कीटोन्स हम दोनों को पता है दे आर फंक्शनल आइसोमर. द फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, बोथ शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला एज आई सेड, CnH2nO. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, दिस बिकम्स C3H23 6O. सो दिस बिकम्स C3H6O, राइट. फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन गया. अब हम क्लियरली देख सकते हैं, मैंने बोला एल्डिहाइड तो कीटोन्स फंक्शनल आइसोमर्स हैं, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए 1 2 3. अब एल्डिहाइड के केस में एक कार्बन तो क्या होगी, एल्डिहाइड की होगी, राइट, 3. तो एंड यू नो यू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन. एक बॉन्ड बनाए या 3 बना दो, या 2 बॉन्ड्स बने हैं, यू नो बचे हुए 2 हाइड्रोजन के साथ बना दो. So what is this compound referred to as? This is like 1 2 3 3 कार्बन के लिए prop सिंगल बॉन्ड एन फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, प्रोपेन 1 और प्रोपेनॉल, however you want to call it. अब जब हम कीटोन्स के लिए सेम फॉर्मूला लिखते हैं, बिकम 1 2 3. कीटोन्स हमें पता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मिडिल ऑफ द चेन में आएगा, तो मिडिल ऑफ द चेन क्या, सेकंड कार्बन इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन. तो सेकंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आता है, यहाँ पे हो जाएगा CH3. यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बना दो CH3. सो दिस कंपाउंड इज रेफर टू एज 1 2 3. 3 कार्बन के लिए प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, सेकंड कार्बन पे कीटोन, सो यू राइट इट एज प्रोपेन 2 on और प्रोपेनॉन. अंडरस्टूड होता है कि कीटोन कभी फर्स्ट कार्बन पे तो आएगा नहीं, तो प्रोपेन 2 on को आप प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो ना. प्रोपेनॉन इज कॉमनली नोन बाय द नेम acetone and it's used in the nail polish remover, right. Now moving on to the fourth type of isomerism that we see in the carbonyl compound is metamerism. Now again, metamerism is the type of isomerism which is not exhibited by aldehyde but is definitely exhibited by ketones. Aldehydes क्यों? Because metamerism basically क्या होता है ना, when the two compounds have the same molecular formula, they have the same functional group. Molecular formula same है, carbon chain length same है, functional group same है, but they differ in the alkyl chain on either side of the functional group. Functional group के either side पे, on both the sides of the functional group, कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस होता है. कार्बन चेन लेंथ बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइड जो कार्बन चेन लेंथ है दैट वुड डिफर, राइट. मैं अब ये बोला कि फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड कार्बन चेन लेंथ वुड डिफर. अब ये कीटोन्स के केस में पॉसिबल है, एल्डिहाइड्स के केस में पॉसिबल नहीं है. व्हाई? बिकॉज एल्डिहाइड्स के केस में हमें पता है जो सी डबल बॉन्डो के एक साइड तो हाइड्रोजन फिक्स्ड है, राइट. सो वहाँ पे तो डिफरेंस आ ही नहीं सकता. अब डिफरेंस सिर्फ एक लेवल पे नहीं आएगा. वी हैव सेड दैट दे शुड डिफर इन द एल्काइल चेन ऑन बोथ द साइड्स, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट. सो दैट्स व्हेन वी रेफर टू इट एज आइसोमर्स. मेटामेरिज्म तब शो करते हैं विच इज, तो ये मेटामेरिज्म सिर्फ उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स में देखा जाता है विच कम इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन. जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं यू विल नॉट सी मेटामेरिज्म बीइंग एग्जिबिटेड बाय दोज कंपाउंड्स. ठीक है, अब जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल लिया, लेट्स टेक C5H10O. अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है. पेंटेन 2 on, पेंटेन 3 on में सेम एग्जांपल ले रही हूँ, व्हिच आई टुक इन द केस ऑफ पोजिशन आइसोमर्स. अब यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक साइड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक साइड यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, राइट. एक साइड यहाँ पे मिथाइल, एक साइड यहाँ पे प्रोपाइल. सेम इसका जो आइसोमर है दिस सी डबल बॉन्ड O, 1 second, let me write it down here, 1 second, CH3, this becomes CH3, okay, hold on guys. Okay, so as I was saying, हमने सेम कंपाउंड सेम एग्जांपल लिया, ठीक है. C5H10 पेंटेन 2 on, पेंटेन 3 on. अब हम क्लियरली देख सकते हैं पेंटेन 2 on के केस में देखो सी डबल बॉन्ड O के एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है. पेंटेन 3 on के केस में सी डबल बॉन्ड O के एक साइड वी हैव दी इथाइल ग्रुप एंड ऑन द अदर साइड एज वेल वी हैव द इथाइल ग्रुप, राइट. दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, राइट. सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, राइट. यहाँ पे मिथाइल और प्रोपाइल है, यहाँ पे इथाइल और इथाइल है. सो दे बोथ द कंपाउंड्स डिस्पाइट शेयरिंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे डिफर
in the alkyl chain which is present on either side of the functional group, hence they are referred to as metamers. अब आप बोलोगे कि you gave the similar example in the case of position isomers. अब एग्जाम में अगर ऐसा हुआ कि ऑप्शंस, पहली बात तो एग्जामिनर विल नॉट डू दैट, कि अगर आपसे बोला गया है कि अगर ये पेंटेन 2 on and पेंटेन 3 on and guess the type of isomerism which is being exhibited by these compounds, and if the options contain both position isomerism and metamerism, what do you think you're going to mark? So you give first priority to the position isomerism, ठीक है, पहली प्रायोरिटी पोजिशन आइसोमेरिज्म को जाएगी एंड देन यू मार्क मेटामेरिज्म, बिकॉज मेटामेरिज्म बहुत जनरल नहीं है, मतलब नॉट वेरी कॉमन, बट पोजिशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म मोर फ्रीक्वेंटली एग्जिबिटेड काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म्स हैं जो हम कंपाउंड्स में देखते हैं, राइट. एंड देन कम्स ओके द स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट वी सी हियर, जो हम और अभी तक सो फार वी हैव नॉट सीन इन एनी कंपाउंड्स दैट वी स्टडीड, इज टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म में भी जो टाइप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. Okay, so as we were discussing about metamerism, now we discussed metamerism. Now let's move on to tautomerism. तो tautomerism जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कीटोइनॉल टाइप ऑफ tautomerism. इसमें हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, 1 second, यहाँ पे we can see we have CH2, 1 second, we have CH2 double bond CHOH, ठीक है. तो ये इनोल्स होते हैं, दीज आर रेफर टू एज इनोल. एज यू कैन सी ये डबल बॉन्ड को हम ईन बोलते हैं, ईन, एंड दिस इज द अल्कोहल. सो अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं ओल, सो दिस इज इनोल, दिस इज द इनोल ग्रुप, ठीक है. अब इनोल्स रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, तो इनोल्स में इनोल्स अपने आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन वेयर इन ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे आ जाता है, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये इस वाली कार्बन पे चली जाती है, राइट. सो द कंपाउंड लुक्स समवॉट लाइक दिस. अब ये डबल बॉन्ड लेट्स से अगर इधर आ गई तो दिस बिकम्स, अभी ये देखो, रुको आई विल शो यू. अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस वाली ऑक्सीजन पे आ जाती है और ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इस वाली कार्बन पे चला जाता है. अब लेट्स से अगर ये ऑक्सीजन का ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया, दिस बिकम CH3, ठीक है. अब ये सिंगल बॉन्ड ही रह गया बिकॉज इसका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया, दिस बिकम CH डबल बॉन्ड O, राइट. अब CH डबल बॉन्ड O इज नथिंग बट एल्डिहाइड, राइट. सो दिस बिकम CH3 CHO. सो इनोल्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म विच इज आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मतलब यूजुअली तो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, बट यहाँ पे एक आ गया बिकॉज ये अभी because ये भी it's relatively smaller ketone like enol, and which is why it gets converted into aldehyde. Otherwise ketones भी convert होते हैं. Okay, now the most important part of the chapter begins here. Now we'll discuss the methods of preparation of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Now carboxylic acid altogether we'll deal with in a separate video. उसमें हम पूरा carboxylic acids का nomenclature, structure, methods of preparation, physical properties, chemical properties, now we will deal with all of that in a separate video. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, 1 सेकेंड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. तो हम सबको पता है जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, गेट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड्स, एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन द अदर हैंड गेट ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स. तो प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इज नथिंग बट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हेन यू ऑक्सीडाइज देम, जब आप उनको ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? लाइक वी हैव HNO3, वी हैव KMNO4 H+, KMNO4 एसिडिक मीडियम में, KMNO4 OH- alkaline मीडियम में, वी हैव K2Cr2O7 H+, which means we have acidified potassium dichromate, or we have CrO3 in the presence of H2SO4, which is nothing but Jones reagent. जब आप इसे strong oxidizing agents की presence में alcohols को oxidation कराते हो, primary alcohols get oxidized to aldehydes and secondary alcohols get oxidized to ketones respectively. Now another thing that you must keep in mind is that aldehydes are more prone to further oxidation to carboxylic acid. Aldehydes बहुत easily oxidize हो जाते हैं to carboxylic acid in the presence of a strong oxidizing agent, which is why when we are especially dealing with strong oxidizing agents in the case of aldehyde, what we do is we need to distill off the aldehyde form immediately. तो जैसे ही primary alcohols को आपने treat किया strong oxidizing agents के साथ, it will immediately get converted into aldehydes, and then aldehyde might further get oxidized to carboxylic acids, which is why हम कहते हैं कि if you're conducting this whole reaction in the presence of a strong oxidizing agent, make sure जैसे ही aldehyde बने you distill it off, और आप distillation से तुरंत separate कर लो. Otherwise अगर आपने कुछ सेकंड का भी डिले किया, some amount of aldehyde would have already gotten converted to carboxylic acid, ठीक है. So which is why we need to distill off the aldehyde which is formed immediately. Ketones on the contrary, on the other hand, they are tough to oxidize further. Ketones इतने जल्दी oxidize नहीं होते to carboxylic acid. Of course
अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले लेते हो तब भी दे डू नॉट ईजिली गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ वाई इस रिएक्शन में जो परसेंटेज यील्ड होती है कीटोन्स की बेटर होती है. वाई बेटर होती है? बिकॉज कीटोन्स तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा, तो कीटोन्स हमें एज इट इज़ मिल रहा है, राइट. पर इन द केस ऑफ एल्डिहाइड अगर हमने थोड़ा भी डिले किया, सम अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड ऑलरेडी गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका यील्ड कम हो जाता है, राइट. विच इज़ वाई वी से इन दिस रिएक्शन द परसेंटेज यील्ड ऑफ कीटोन इज़ बेटर. तो जैसे कि वी कैन क्लियरली सी हियर, primary alcohol in the presence of a strong oxidizing agent, primary alcohol in the presence of a strong oxidizing agent gets converted into aldehyde, and aldehyde might further get oxidized to carboxylic acid. Secondary alcohol on the other hand, in the presence of a strong oxidizing agent gets converted to ketone, and ketones are tough to oxidize further. Now if you want to prevent further oxidation of aldehyde, what do? अब हमारा भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नाम ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. वी डू नॉट वांट टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ व्हाट डू वी डू? सो व्हाट डू वी डू हियर इज, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ ही मत करो. सिंपल चीज़ है ना कि अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देन लेट अस नॉट यूज़ इट. लेट अस नॉट यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लेते. सो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट further oxidation of aldehyde, what do? We use mild oxidizing agent instead of strong oxidizing agent. तो mild oxidizing agent alcohols को aldehydes में तो convert कर देगा, but aldehydes को further carboxylic acid में convert नहीं करेगा. And the mild oxidizing agents that we mainly use here are PCC, PDC and Collins reagent. Now PCC actually stands for pyridinium chlorochromate, PDC stands for pyridinium dichromate, and Collins reagent एक complex compound होता है, so you just have to remember the name. PCC, PDC, Collins reagent, PCC stands for pyridinium chlorochromate, PDC stands for pyridinium dichromate and Collins reagent. So ये mild oxidizing agents आप use कर सकते हो, to convert alcohols into aldehydes. Now another method of preparation is by dehydrogenation of alcohol. अब ये जो dehydrogenation of alcohols है, ये methods हम specifically use करते हैं for volatile alcohol. Now what do we mean by volatile compounds? Volatile compounds are those compounds which easily get converted into vapors. वो compounds जो easily vapors में convert हो जाते हैं, that easily get vaporized, that easily get converted into vapors are volatile compounds. तो कुछ alcohols होते हैं which easily अगर आपने उनको ऐसे छोड़ा unchanged and in the presence of moisture they quickly get converted. जैसे थोड़ा भी elevated temperature हुआ, they quickly get converted into their vapor form. तो dehydrogenation of alcohols method it's more suitable for volatile alcohols. तो इस reaction में basically what do we do is we use vapors of alcohols. हम जो volatile alcohol के vapors होते हैं, हम इन्हें pass कराते हैं over heated heavy metals like silver and copper. जो volatile alcohol basically जो volatile alcohol के जो vapors होते हैं, we pass them over heated heavy metals like silver and copper, and the reaction looks somewhat like this. Now let's take हम दोनों की मदद से समझेंगे. हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया which is RCH2OH. ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल के वेपर्स को जब हमने पास कराया ओवर हीटेड हैवी मेटल लाइक कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, विच इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 300 डिग्री सेल्सियस. तो हमने प्राइमरी अल्कोहल का जब वेपर्स को हमने पास कराया ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस, डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है. बेसिकली ये देखो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाली जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, एंड दिस बिकम्स RCHO, राइट. दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. और ये जो दोनों हाइड्रोजन गए थे कंबाइंड एंड दे गेट एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, राइट. अब सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर ऑफकोर्स सेम कंडीशन में अगर हम ट्रीट कराएं, ये हम सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, पहले OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल को हमने पास कराया, इनके वेपर्स को हमने पास कराया और हीटेड हैवी कॉपर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन एंड 300 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है. ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है, इसके लिए अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, एंड दिस बिकम्स RC++OR'. ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड दे गेट कन्वर्टेड टू RC++OR' कीटोन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. नाउ दिस इज डीहाइड्रोजनेशन. D स्टैंड्स फॉर रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब प्राइमरी अल्कोहल्स बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड्स में, सेकेंडरी अल्कोहल्स हमने देखा कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में. व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल्स? टर्शियरी अल्कोहल्स व्हेन यू पास देम ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. नाउ आई विल टेल यू व्हाई. obviously makes so much more sense, right? अब अगर एग्जाम्पल की मदद से समझे, पहली बात तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टर्शियरी अल्कोहल्स आर.
OH जिस कार्बन से अटैच्ड है फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स टर्शरी अल्कोहल। अब हम टर्शरी अल्कोहल्स के केस में डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, यू नो व्हेन वी पास देम ओवर हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं अल्फा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बिकॉज उसके तो चारों बॉन्ड बने हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप रिमूव क्या करोगे, विच इज़ वाई टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट गेट अंडरगो ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं बिकॉज ऑक्सीडेशन ही तो है ना, राइट। डिहाइड्रोजनेशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट gain of oxygen, loss of hydrogen and loss of electrons. Reduction on the contrary is gain of hydrogen, loss of oxygen and gain of electron. ठीक है, तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही ना, यू रिमूविंग द हाइड्रोजन एटम्स, राइट। सो टर्शरी अल्कोहल्स को जब आप पास कराते हो हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस, दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। वाई? ठीक है, तो हम जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं टर्शरी अल्कोहल्स को जब हम पास करते हैं वो हीटेड कॉपर एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन or 300 degrees Celsius, they do not undergo oxidation. Why? Because of the absence of alpha hydrogen on carbon. ठीक है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस की वजह से दे अंडरगो डिहाइड्रेशन इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म एल्कीन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे एंड इफ यू सी, पहले बात तो टर्शरी अल्कोहल सबको पता है, राइट। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब हम क्लियरली देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाली सारी होती है बीटा कार्बन। ठीक है, बगल वाली होती है बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 बीटा कार्बन है। अब हम क्लियर देखें डिहाइड्रेशन में क्या होता है ना, जो अल्फा कार्बन है उससे OH और किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, सो OH एंड OH निकल जाएगा, विच इज़ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड व्हाट यू एंड अप एक्चुअली गेटिंग इज यू गेट एल्कीन एज द प्रोडक्ट। सो जब आप 3 डिग्री अल्कोहल को हीटेड कॉपर क्यूब से पास कराते हो एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअली हैपेंस हियर इज, देखो बच्चे वो सबको एज इट इज़ लिख दो, CH3। देखो इस वाले अल्फा कार्बन से OH गया, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यू गेट CH2। सो दिस बिकम्स CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज रेफर टू एज कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ईन, सो 2 मिथाइल प्रोपीन, और यहाँ से OH गया और जो H गया है कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज़ बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन, जिसमें दिस रिमूवल ऑफ वाटर। Moving on to the next chemical property, next method of preparation rather, which is by ozonolysis of alkenes। अभी हम हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, अभी हमने अल्कोहल से देख लिया, अब हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले लेते हैं ओजोन, हम ओजोन लेते हैं, सॉरी सबसे पहले हम लेते हैं एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करते हैं। हाउ डू यू गो अबाउट इट, आई एम गोना टेल यू। हमने एल्कीन्स लिया, एल्कीन्स क्या होता है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, एल्कीन्स लिया, एल्कीन्स का हमने रिएक्शन करा ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओजोन के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये टूटेंगे, दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इज, देखो दोनों डबल बॉन्ड टूट गए लेट्स से। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड लेट्स से एक हर्ट झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनता है। डू नॉट थिंक इट्स हार्ट, HEART हार्ट होता है, नॉट हर्ट। आई एम सेइंग हर्ट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, झोपड़ी जैसा। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक, कि ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड। ठीक है, अब फिर क्या होता है, फिर हम इस ओजोनाइड का रिडक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। इसका फर्दर जब हम ऐसे रिडक्शन लाइक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं फर्दर इसका, तो व्हाट डू वी एक्चुअली गेट, यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड गया, यहाँ से ये बॉन्ड गया। अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट डू वी हैव लेफ्ट, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये है, राइट, कार्बन 2 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन। अब कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाएगा। इन द सेम वे अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो इसमें हमारे पास कार्बन पे 2, देखो कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बीच में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह गया। अब ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ कंबाइन करके फॉर्म ZnO। साइड प्रोडक्ट है तो हम कैटेगोरिकली मेंशन नहीं करते हैं इसको, अदरवाइज दिस इज व्हाट वी एक्चुअली एंड अप गेटिंग। अब बार एग्जाम में यू डू नॉट हैव सो मच टाइम, वी हैव 1 क्वेश्चन पर मिनट। इतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पे पहले उसको ओजोन CCl4 के साथ रिएक्ट करा के ओजोनाइड बनाएंगे, फिर ओजोनाइड का ऐसे ब्रेकिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O एंड देन विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव कंपाउंड। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जो C डबल बॉन्ड C है, द एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दो और इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दो। और इतना कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड से जुड़ेगी कार्बन के साथ, ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड राइट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, ठीक है, सिंपल कर दो, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है, ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन हमने कराया ओजोन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय जिंक ZnH2O, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ एक ऑक्सीजन दे दो, यहाँ एक ऑक्सीजन दे दो, व्हाट वी एक्चुअली गेट हियर इज CH3 यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब इस CH3 को मैं साइड में भी लिख सकती हूँ, दिस बिकम्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 विच इज़ प्रोपेनॉन, और यहाँ पे अगर जो मैंने ऑक्सीजन दिया दिस बिकम्स OCH2 राइट। अब OCH2 क्या है, OCH2 को क्या है, रीराइट इट एज HCHO, yeah, so that's exactly what you get. You get methanol. So you get one molecule of propanol, one molecule of methanol. Let me explain it to you with another example. We have CH3C, CH3 double bond C, CH3H. ठीक है, अब यहाँ पे भी exactly do the same thing. वही मैंने ओजोन का रिएक्शन कराया CCl4 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, व्हाट डू यू एक्चुअली गेट CH3C CH3 एंड यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, और मेक श्योर कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो है CH3 और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। सो द कंपाउंड दैट वी एक्चुअली गेट इज, एक हो गया हमारे पास एसीटोन या प्रोपेनॉन, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, दिस बिकम्स व्हाट डू यू थिंक दिस बिकम्स CH3 और ये CHO हो जाता है राइट, दिस बिकम्स CH3 CHO, दिस बिकम्स इथेनॉल राइट। सो आई थिंक दैट इज वी डन विद दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव बायहाइड्रेशन ऑफ alkene, just in case you feel like I'm speaking too fast, because I have to, these are fast track revisions, these are not detailed marathon lectures which I've already uploaded on my channel, so you can go check them out in case. And you know, when I basically refer to the speed you can adjust accordingly right, because these are fast track sessions, so we have to maintain the pace right, and so it's a marathon right, we can't afford to walk, we gotta run here because we do not have much time left. So you know, in case you feel that I'm speaking too fast, you can adjust the speed accordingly, you can switch it to 1.5 or 0.75 as you like, ठीक है। बायहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स की अगर मैं बात करूँ तो एल्कीन्स बायहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, अभी हमने ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स किया, अब हम करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जब मैं रिएक्शन कराती हूँ पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, in the presence of what, in the presence of HgSO4 and dilute H2SO4, they form enols which will tautomerize to give more stable aldehyde ketone। अब exactly इसमें क्या होता है, let us see।